next command is command to create a table. Command to create a table. Create a table. So just a second. The command is, I open the SQL software. MySQL. First, just a second. The basically first command is show databases. Show databases. Then show databases. Just a second. Hello, Parushi. My voice is audible? Parushi. Hello. Yeah. Okay. Can you hear me? हाँ. Yes, Parushi. Okay. Then Parushi, अभी मैं कुछ previous command करा रहा हूँ, ठीक है? वो आप देख लेना एक बार, okay? अच्छा, वो आपने लास्ट क्लास में नहीं कराए थे? वो लास्ट क्लास में करा दी थी, बट कुछ कमांड्स रह गई थी. अच्छा. ओके, ठीक है. ओके, चलिए. तो अब हम यहाँ पे देन हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन अ MySQL. देन command is create table. Create table. Table name is student. Then normal parenthesis. First I have to take the field name, roll number, and their data type is int. Int means integer. Integer denote for numeric value. And how many digit I want to store? Suppose that 3. अगर मैं चाहता हूँ कि 3 digit का एक roll number store कर रहा हूँ, then student underscore name. Second field name is a student underscore name. Then data type is varchar. Field width is 20. Or then class. Then int. varchar हम लेते हैं character value के लिए. Then class and 3 integer. Then fees. For point value we take data type is decimal 5, 2. That means कि मेरी maximum digit fees में होंगी 5 और decimal के places के बाद कितनी values होंगी 2. And then city. Then data type is varchar and then same 20. Okay. And then close the parenthesis and put semicolon. Then when we press enter, it's no database selected. Okay. इसमें जब भी हम उसको MySQL पारुषी कैन यू बता सकते हैं कि ये जो एरर आ रही है बिकॉज ऑफ बट किस रीजन की वजह से आ रही है पारुषी या उत्कृष्ट आपने वो स्कूल नहीं सेलेक्ट किया. वेरी गुड, क्योंकि हमने मतलब हमने डाटाबेस को बिना ओपन करे उसमें डायरेक्ट टेबल क्रिएट कर दी, तो हमें पहले डाटाबेस ओपन करना पड़ेगा. एंड उत्कृष्ट, व्हाट इज द कमांड टू ओपन ए डाटाबेस? उत्कृष्ट, then hello Utkrist. Yes. What is the Yes. command to open a database?
Open. Yes. No idea? Parushi, you have any idea? What is the command to open a database? Use school. Very good. Use school. Then use and the database name. Database name is school. Then semicolon database change. Now then अब मेरे को टेबल क्रिएट करने की कमांड लगाऊंगा मैं. Then मैंने राइट डाउन कर रखी है. मैं उसको अप एरो की और डाउन एरो की से मैं अपनी जो लास्ट मैंने कमांड्स राइट डाउन करी हैं मैं उसको एक्सेस कर सकता हूं. तो मैंने यहाँ पे एक्सेस कर लिया. नाउ द क्वेरी इज ओके एंड टेबल स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड. ओके, टेबल स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड. तो उत्कृष्ट ये वाली कमांड एंड आप ये वाली कमांड राइट डाउन कर लीजिए जो क्रिएट टेबल वाली है. मैंने ये कमांड राइट डाउन कर ली है. Now the next command is 7 command to show table structure. Command to show table structure and the command name is DESC and table name. Table name is student. Just a second. Then student. Then DESC and table name student. Then when I put this command DESC denotes for describe table structure. When we want to show the structure of a table, then we use this command. Then it will basically it's showing the field name and their data type. Later I will explain what is the purpose of null, key and default. मैं आगे इसको बताऊंगा कि नल क्या होता है. वैसे नल का मीनिंग होता है नल मतलब एमपीटी. तो बाय डिफॉल्ट जो हमने टेबल क्रिएट करते हैं तो उसमें नल वैल्यू एक्सेप्टेड होती है. मतलब अगर मैं कोई किसी एक रिकॉर्ड में कोई एक फील्ड की वैल्यू नहीं डालता तो इट विल एक्सेप्ट ऑल दीज वैल्यूज. तो मैं चाहूँ तो विद द हेल्प ऑफ नॉट नल कमांड जो मैं आगे बताऊंगा मैं उसको नॉट ये भी बोल सकता हूँ कि अगर कोई इसको एमपीटी छोड़े तो वो उसको एक्सेप्ट ना करे. ठीक है. तो यहाँ पे दैट इज द तो डिस्क्राइब कमांड. ओके, तो ये कमांड्स जो भी स्टूडेंट कनेक्टेड है वो राइट डाउन करते हुए चलना क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तभी समझ में आएगा. डिस्क्राइब. अब अभी हमारी टेबल एमपीटी है. अब हमें टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स पुट करने हैं. क्या पुट करना है? रिकॉर्ड. तो पारुषी रिकॉर्ड स्टोर कराने के लिए कौन सी कमांड होती है? देखना पड़ेगा, एक मिनट. Command to insert record into a table. Okay. Command is आपको वैसे याद नहीं पारुषी? You forgot? ये वाला नहीं याद. बाकी तो बिना देखे ही बोले थे लेकिन ये वाला नहीं याद. Then the command is insert into student then values. अब वैल्यूज जो हम उत्कृष्ट एंड धर्मवीर एंड पारुषी हम प्रोवाइड करेंगे वो उसी ऑर्डर में करेंगे जिस ऑर्डर में हमारा फील्ड नेम्स है. फर्स्ट इज रोल नंबर, देन सेकंड नंबर इज नेम शिवम and then their class is 10th and fee is 500.75 and their city is Noida. Okay, so then I put semicolon. So that is the command to insert a record into a table. Utkrist, with the help of insert command we can store data inside a table. Okay, Utkrist, insert command is clear? Yes sir. Okay. Now we have to insert near about 5 records. तो then मैं insert put करता हूँ. Just a second. Insert. Then values मैं change कर देता हूँ. Just a second. Name change कर देता हूँ.
सर ये सर ऑर्डर में आएगा ना, एक बिल्कुल बिल्कुल, ये एक ऑर्डर में यही है। ऑर्डर में आएगा। हाँ, जिस ऑर्डर में ये ऑर्डर, जिस ऑर्डर में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, वो उसी ऑर्डर में उसको शो भी करेगा। मैं उसको भी शो कराऊंगा। दिल्ली, देन वन मोर रिकॉर्ड। ओके, देन मैंने अभी अब फॉर एग्जांपल पारुषी, सपोज दैट एंड ऑल अदर स्टूडेंट्स, सपोज दैट इफ आई वांट टू स्टोर ओनली वैल्यू रोल नंबर एंड नेम एंड देयर सिटी ओनली, सपोज दैट कि मेरे को सिर्फ 3 वैल्यू देनी है, भी रोल नंबर देना है, नेम देना है और उसकी सिटी देनी है, क्लास और फीस की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम उसको कैसे इंसर्ट करेंगे? जस्ट अ सेकेंड। उसके लिए हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। तो पारुषी, जिन फील्ड्स की वैल्यू हमें स्टोर करानी है, द वैल्यू, ठीक है, उन्हीं को हम रेफर कर देंगे। एक मेरे को क्या स्टोर करानी है? रोल नंबर, देन कॉमा, फिर मेरे को स्टूडेंट नेम स्टोर कराना है, देन कॉमा उत्कृष्ट, फिर मेरे को सिटी देनी है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि मैं सिर्फ इन फील्ड्स की वैल्यू यहाँ पे पास कर रहा हूँ। और देन वैल्यूज, अब मैं वही 3 वैल्यूज पास करूंगा, 1 to 5। नेम ले लिया सचिन, एंड ये 2 वैल्यू मेरे को यहाँ से हटानी पड़ेंगी, ठीक है। अब पुणे, पुणे की जगह मैंने यहाँ पे कोई एक और सिटी ले ली, मुंबई। अब मैंने एंटर करा। तो अगर आपको सारी वैल्यूज एंटर करानी है, इफ यू वांट टू स्टोर ऑल द डाटा, तो देन आप सिंपली टेबल नेम मेंशन करेंगे, उसके ब्रैकेट में आपको फील्ड नेम मेंशन करने की जरूरत नहीं है। बट अगर इफ यू वांट टू एंटर स्पेसिफिक फील्ड्स वैल्यू, देन यू हैव टू मेंशन दोज फील्ड विद द टेबल नेम। जैसे यहाँ पे लास्ट कमांड में मैंने मेंशन करा है कि रोल नंबर, स्टूडेंट नेम एंड सिटी। तो आप इस कमांड को, अगर पारुषी राइट डाउन नहीं है आपके पास, आप हाँ मैंने लिख लिया। आप लिख लिए ना, आप लिख लेना इसको। उत्कृष्ट, क्लियर? ओके, अब नाउ वी हैव टू शो ऑल दी, just command to show all the data, all the data of a table. And the command is very important command. Select star from table name. Select star from table name, and in this case table name is student. Then I press enter, तो it will show all the data. और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके अंदर select star from table name. पारुषी एंड उत्कृष्ट धर्म, आप इसमें देख रहे हैं कि जहां पे मैंने लास्ट रिकॉर्ड जो एंटर कराया था सचिन का, उसमें मैंने क्लास और फीस की वैल्यू नहीं दी थी, तो वहां पे क्या डिनोट कर रहा है? नल। वहां पे वो नल शो कर रहा है। ओके, हेलो उत्कृष्ट। तो वहां पे, हाँ, तो वो वहां पे फील्ड नेम आ रहा था ना, नल। दैट मीन्स कि इट एक्सेप्ट नल वैल्यूज। आगे अगर हम चाहते हैं कि हम रेस्ट्रिक्ट करें कि वो नल वैल्यू को एक्सेप्ट ना करे, तो देन हम फील्ड्स कॉन्स्टेंट्स का यूज करेंगे। कंस्टेंट्स होते हैं, कंडीशंस का यूज करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि हम नल वैल्यू को भी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। नल वैल्यू को मतलब
वहां पे अभी तक कुछ भी नहीं स्टोर हुआ हाँ, है। वहां पे अभी कुछ भी वैल्यू नहीं प्रोवाइड करी गई है, एम्प्टी है। कई केसेस में होता है ना, हमें सारी डिटेल नहीं पता होती उत्कृष्ट, इन दैट केस हम उसको खाली छोड़ सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वहां पे नल शो करेगा। क्लियर? ये यस आपने, सर। हाँ परुषी। अच्छा नहीं नहीं मेरे को आ गया सर। ओके, अब पारुषी। कमांड है, हम्म, एक मिनट। स्टार का मतलब ऑल है। Star means all. Suppose that you want to access only a student name and their fees, and then in that case command is select. Then you write down the basically student name comma fees from table name, and here table name is student. In that particular case it will show only those fields, student name and fees. Clear? यस सर। Okay. अब सपोज दैट कि इफ यू वांट टू अपडेट दी सचिन रिकॉर्ड, अगर हम पारुषी चाहते हैं कि जो सचिन रिकॉर्ड है उसमें जो वैल्यू नल है, हमें देन हम वहां पे वैल्यू देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्लास देना चाहते हैं 10 एंड फीस देना चाहते हैं 800। तो पारुषी हमने ये कमांड करी थी कि अगर रिकॉर्ड में अपडेट करना हो तो कैसे करेंगे? नहीं। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, आप इसको ध्यान से समझिए। देन द कमांड इज just a second, 10th command is use of update command. Okay, and the command is use of update command in SQL. अपडेट हम कैसे करेंगे? जस्ट अ सेकेंड। command is update and update table name is student। हमें कौन सी वैल्यू अपडेट करनी है? फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मेरे को वैल्यू अपडेट करनी है किसकी? क्लास की। फॉर एग्जांपल क्लास अपडेट करना है मेरे को, तो मैं लिखूंगा सेट क्लास इज इक्वल टू 10th। क्लास की वैल्यू क्या सेट कर दे? 10th। बट किस स्टूडेंट की सेट करे वैल्यू? सचिन की। तो देन वेयर स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू सचिन, जहां पे जो बेसिकली स्टूडेंट नेम क्या है? सचिन। अपडेट टेबल नेम सेट, सेट कर दे क्लास वैल्यू, एंड देन वेयर, अगर मैं सेट करके सेमीकोलन लगा के एंटर कर दूंगा तो वो सबकी क्लास 10th कर देगा। बट मुझे स्पेसिफिक रिकॉर्ड की करनी है, तो मैं यहाँ पे क्वेरी दे दूंगा वेयर स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू सचिन, एंड देन आई प्रेस एंटर। then one row affected, row changed, and you show then you show that ki then now Sachin class is 10th. वार्निंग जीरो, मतलब कहीं कोई मिस्टेक होती है ना, कहीं पे कोई मिस्टेक होती है तो वो दिखा देता है कि यहाँ पे आपने कुछ वार्निंग है। जैसे फॉर एग्जांपल है कि कहीं पे मैंने नॉट नल कर रखा है और मैं वैल्यू नहीं दे रहा उसमें, तो वार्निंग शो करेगा कि आपने उसमें नॉट नल लगा रखा है, एरर। अपडेट this command is clear to all students? यस सर। Okay, Parushi? Okay, क्लियर है। okay. अब suppose that I want to basically change the fees also, then same command is there. Just a second. Update set, just a second, set fees is equal to 800,
then where student name is equal to Sachin, so then it will show then Sachin fees is also update. अब suppose that I want to, मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे कि हम चाहते हैं कि जो सबकी फीस की वैल्यू है वो 10% इंक्रीमेंट हो गई, मतलब सबकी फीस में कितना परसेंट इंक्रीमेंट हो गया, 10%. तो हम उसको कैसे लगाएंगे, सेम अपडेट एंड द टेबल नेम इज स्टूडेंट. अब मेरे को सारे रिकॉर्ड्स की चेंज करनी है, अब स्पेसिफिक नहीं, सबकी 10% फीस में इंक्रीमेंट करना है. तो देन सेट फीस इक्वल टू फीस प्लस फीस मल्टीप्लाई बाय 10%. 10% मीन्स 0.1. मतलब फॉर 10% ना. देन यू सी दैट कि वो अब सारे रिकॉर्ड्स में क्या चेंज कर देगा, वो वैल्यूज को अपडेट कर देगा. देन आप देखेंगे कि अब देखिए आप ऊपर वाली वैल्यूज को कंपेयर करो 500, 700, 600, आप नीचे वाली वैल्यूज को कंपेयर करो, तो इसमें इसने सब में कितने का इंक्रीमेंट कर दिया, 10%. 10%. ओके, एंड क्लियर, दिस कमांड इज आल्सो क्लियर. Yes. Okay, the next command is 11th, use of where is basically used for condition. Suppose that कि मेरे को specific, मुझे सारे रो एक्सेस नहीं करने, मुझे सिर्फ 10th क्लास के स्टूडेंट एक्सेस करने हैं, only for class 10. तो then the command is select star from table name. Table name is student. अब मुझे एक्सेस करना है where is basically used for condition. जब भी हमें कंडीशन अप्लाई करनी है तो हम where का यूज करेंगे. where class is equal to, for example 10th या 12th which you want to filter, then you press enter, so it will show only the records of class 12th, 10th or 12th, जो भी आपने कंडीशन रखेंगे. तो that is basically where command is used to filter the records. Okay. This command is clear. Where? Yes, sir. Okay. Use of and comma or operators, use of and comma or comma between. Sir, Yes. and और between ये सारे कैपिटल में लिखे जाएंगे. नहीं, ये सारे, ये एसक्यूएल जो है दैट इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. यू कैन राइट कमांड इन अपर केस एंड एज वेल एज लोअर केस. आप दोनों केसेस में से कैसे भी लिख सकते हैं. यहाँ पे मैं हेडिंग दे रहा था, इस वजह से मैंने उसको कैप्स में लिख दिया, बट इन माई सीक्वल आप अपर केस लोअर केस किसी भी केस में आप राइट डाउन कर सकते हैं. बट इन प्रैक्टिस आप कोशिश करो, यूज करो कि आप लोअर केस में ही लिखो सारा, कोई भी कैप्स लॉक में ना लिखो. यहाँ पे आई जस्ट ओनली गिविंग द हेडिंग, दैट्स व्हाई I write down in caps. Yes, sir.
then basically the suppose that Parushi, मैं ये चाहता हूँ मैं शिवम स्टूडेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ. अब बट देयर आर मैनी शिवम नाम के काफी सारे कैंडिडेट हो सकते हैं लिस्ट के अंदर, इट मे बी पॉसिबल. अब मैं उसको फिल्टर करना चाहता हूँ शिवम जो नोएडा से आता है. शिवम तो है ही, स्टूडेंट नेम तो शिवम होना चाहिए, बट उसकी सिटी क्या होनी चाहिए? नोएडा. वो उसी को नोएडा. दे दे. तो वहां पे देयर आर टू सेपरेट कंडीशन. स्टूडेंट नेम इज शिवम एंड सिटी नेम इज नोएडा, एंड बोथ मस्ट बी ट्रू, मतलब दोनों सेम होनी चाहिए. तो जहां पे हमें उत्कृष्ट मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई करनी है, मल्टीपल कंडीशंस लगानी है, और हम चाहते हैं ऑल कंडीशंस मस्ट बी ट्रू, तो वहां पे केस वी यूज द एंड ऑपरेटर. देन select star from student where student underscore name is equal to Shivam, and as well as their city is Noida. Their city is Noida. Then again, आप हमेशा जब भी आप करेक्टर वाली वैल्यू को कंपेयर करेंगे, आप हमेशा उसको सिंगल कोट्स में रख के कंपेयर करेंगे ऑलवेज. ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू को विदाउट कोट्स कंपेयर करते हैं, जबकि आप करेक्टर वैल्यू को हमेशा सिंगल कोट्स में कंपेयर कर रहे हैं. नहीं, देन एंटर. तो आप देखेंगे इसने यहाँ पे रिकॉर्ड शो कर दिया. ओके, अब सपोज दैट मैंने यहाँ पे नोएडा की जगह फॉर एग्जांपल दिल्ली दे दिया होता. क्या दे दिया था? दिल्ली. तो आप देखते हैं कोई भी रिकॉर्ड नहीं शो करता. क्यों? स्टूडेंट नेम तो शिवम अवेलेबल है, बट उसकी सिटी दिल्ली नहीं है. तो नहीं है. वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, जिसका काफी यूज आता है, जो आपको पता होना चाहिए. क्योंकि आगे आफ्टर मतलब फ्राइडे क्लास मैं आपको क्वेरीज, अनसॉल्व क्वेरीज के क्वेश्चन दूंगा, फिर मेरे को पता लगेगा कि आप कितने क्वेरीज सॉल्व कर पा रहे. अनसॉल्व असाइनमेंट दूंगा ऑन फ्राइडे. उत्कृष्ट, एंड ऑपरेटर इज क्लियर? Yes, sir. आप बस आप सब ये ध्यान रखना कि इन सबको राइट डाउन करते हुए भी चलना, अदरवाइज प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम होगी. अब नाउ देन हम किस ऑपरेटर का यूज देखेंगे? और ऑपरेटर. किसका? और ऑपरेटर. तो और ऑपरेटर, और मींस की चॉइस, यू हैव चॉइस कि अगर एक सिंगल भी ट्रू होगी तो भी. अब सपोज दैट मैं देखना चाहता हूं कि मैं सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स को शो करना चाहता हूं जो या तो दिल्ली से आते हैं या मुंबई से आते हैं फॉर एग्जांपल. तो मतलब या दोनों में से कोई एक सिंगल, मल्टीपल कंडीशन में से अगर कोई सिंगल भी ट्रू है तो मेरा रिजल्ट एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए. तो इन दैट केस वी यूज और ऑपरेटर. देन हाउ? Select star from student where city is Delhi, yeah, or city is Mumbai. City is Delhi या city is Mumbai. तो जहां पे हमें लगता है कि क्वेरीज हमें फिल्टर्ड करनी है, मल्टीपल कंडीशन है, बट एक सिंगल कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो, तो इन दैट केस वी यूज और लॉजिकल ऑपरेटर. एंड और दीज आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स. तो देन और बेसिकली व्हेन वी प्रेस एंटर it will show only those record where city is Delhi या Mumbai. Okay. So in OR operator, if any one condition is satisfied, then result will be executed. Arushi, clear? हाँ क्लियर है. राइट डाउन कर लीजिए आप इसको. Oops. चलो. Okay. Okay. Now the next command
next is the use of in operator. In operator, where we use the in operator, simply think that कि suppose that मेरे को ना values को filtered करना है कि जो दिल्ली से आते हैं, नोएडा से आते हैं, पुणे से आते हैं, किसी अदर सिटी से आते हैं, ओके, आगरा से आते हैं, तो वहां पे बेसिकली मेरे को कमांड कैसे टाइप करनी पड़ेगी, वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली और सिटी इक्वल टू पुणे और सिटी इक्वल टू आगरा और सिटी इक्वल टू नोएडा. तो आई हैव टू यूज मल्टीपल टाइम्स और, मतलब मेरे को मल्टीपल टाइम्स और लिखना पड़ेगा. दैट इज अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस और मेरी क्वेरी एसक्यूएल की काफी लेंथी हो जाएगी. तो जहां पे आपको लगता है कि मल्टीपल फिल्ट्रेशन है बट एक सिंगल फील्ड पे, मतलब सिटी के बेस पे मल्टीपल फिल्ट्रेशन मेरी हो रही है, तो वहां पे हम किसका यूज कर सकते हैं, इन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं. हाउ, कैसे, देन वेरी इंपॉर्टेंट कमांड, यू वेयर सिटी, सॉरी अच्छा मेरे को बिटवीन बताना था, चलो इन भी बता देता हूँ. हाँ, बिटवीन पे भी आता हूँ, वेयर सिटी इन, मैं बिटवीन पे भी आऊंगा तो कोई इशू नहीं. इन बता देता हूँ पहले. इन वेयर सिटी इन, then I write down Delhi, comma, I write down Mumbai, then comma, then Agra, and then Pune, and many more. मतलब जितने भी सिटीज के बेस पे फिल्टर. तो जहां पे आपको लग रहा है कि और का यूज काफी आ रहा है, और सिटी इक्वल टू दिल्ली, और सिटी इक्वल टू पुणे, और दिल्ली सिटी इक्वल टू न्यूयॉर्क, और सिटी इक्वल्स टू मतलब एनीथिंग, ठीक है, तो वहां पे आप और को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इन से. इन वेयर सिटी इन, अगर इनमें से कोई भी एक सिंगल सिटी है, देन इट विल fetch all these record and display on screen. Then I put semicolon and press enter. Then it will show all three record where city is Delhi, Pune और मुंबई. तो इसमें और इसमें फर्क क्या है, सेम ही बात है? हाँ, सेम बात है, लेकिन आप पारुषी आप ये देखेंगे कि अगर मैं इस और ऑपरेटर का लिखता तो और लगा के मेरी क्वेरीज कितनी लंबी हो जाती ना सिटी. अच्छा 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 वो इसलिए अच्छा थोड़ा सा कंप्रेस. अच्छा ओके, आ गया समझ. और एक इन होता है और एक होता है दैट इज नॉट इन. नॉट इन इज अपोजिट ऑफ इन ऑपरेटर. नॉट इन इज अपोजिट ऑफ इन ऑपरेटर. तो देन इट विल शो ओनली नोएडा रिकॉर्ड. Just a second. Hello. सब 5 minutes. ठीक है सर, ठीक. ये दिस कमांड इज क्लियर, इन और नॉट इन. Yes, राइट डाउन भी कर लेना. बिटवीन बेसिकली स्टैंड फॉर की, देन बेसिकली वेयर, जस्ट लाइक वेयर फीस between 500 and 700. इन दैट बिटवीन वैल्यू, बिटवीन तो नाम से ही क्लियर है कि ये सिर्फ कौन सी वैल्यू शो करे, जहां पे फी की वैल्यू किसके बिटवीन है, 500 एंड 700. और नॉट बिटवीन अपोजिट होता है, नॉट बिटवीन 500 एंड 700. तो नॉट बिटवीन इज द, नॉट इज द अपोजिट ऑफ नॉट. चाहे मैं इनके साथ लगाऊं चाहे मैं बिटवीन के साथ लगाऊं, वो अपोजिट होता. राइट डाउन कर लेने. उत्कृष्ट, कमांड इज क्लियर? yes sir. ओके, एंड पारुषी? ओके, मैं लिख ही रही हूँ. बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं. अभी मैं 1 to 1 अप्लाई कर रहा हूँ, बट ऑन फ्राइडे जब मैं रिमेनिंग कमांड्स आपको कराऊंगा ना, तो मैं आपको अनसॉल्व्ड क्वेरीज भी भेजूंगा. तब मेरे को आइडिया होगा कि उत्कृष्ट, पारुषी, धर्मवीर एंड ऑल दीज ऑफलाइन स्टूडेंट्स की कितने कैंडिडेट्स को क्वेरी समझ में आई. और डाटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है, एसक्यूएल की बहुत इंपॉर्टेंस होती है. कभी भी आप आगे इन फ्यूचर इंटरव्यूज जाओगे, आईटीज में जाओगे, तो डाटाबेस से रिलेटेड एक अलग राउंड कंडक्ट होता है. ठीक है,
तो अगर कोई आज जो मैंने कमांड्स कराई हैं कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अभी ये मीटिंग 1 मिनट में फिर ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। आई थिंक इससे ज्यादा कमांड करके अभी कोई बेनिफिट भी नहीं है। उत्कृष्ट, पारुषी, हाँ इनफ है आज के लिए। उत्कृष्ट आज के लिए इनफ है। यस ओके, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट, यस, हमारे को ये आपको भेजना होगा आज भी। जो भी आपने राइट डाउन करा है ये प्रैक्टिस करके आपको मेरे को स्क्रीनशॉट भेजने हैं, पारुषी को भी एंड उत्कृष्ट को भी और धर्मवीर को भी। किसका किसका स्क्रीनशॉट भेजना है? इन कमांड्स को प्रैक्टिस करके फोटोज लेना सॉफ्टवेयर की और देन आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना। अच्छा। ओके 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 देन फिर फ्राइडे मिलते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू। बाय। थैंक यू सर। ओके उत्कृष्ट।